and film farmers Rajesh, along with Vibhu, who spent a long time in getting this film right, because it's set about 100 years ago, and as you understand, that's a difficult thing to bring to celluloid or to the screen. And also it is associated with flying, so that means that it has to rely on visual effects to create sequences and so on and so forth. Plus, it's Vibhu's first film, so it was a hard, long sort of production. I would also like to thank the cast of this film, Ayushmann. You will see him in a very new avatar in this film. Pallavi, who is doing her second big film at this point in time. Mithunji, who is the heart and soul of this film, along with Ayushmann, and a wonderful child actor, Naman, who is making his debut in the film. He's done stuff, but I hadn't seen him before. He's wonderful. So Sanjeev ji, just cutting you here and asking you, ये history class से आपको डर नहीं लगा? History से डरना क्या है? हमारी history है. You know, in fact, it's wonderful that you have events in your history that you can actually go out and celebrate. And it's a double bonus when these events are need to be brought to audiences, and there is not much information about these events. Yeah, so I think it's a film that everybody here can be very proud of. So moving to my next question, which is directed to the director, come lyricist, come right. You're going to be the next Vishal Bharadwaj on the scene. Please join us, Vibhu Puri, to tell us. और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि by the way ये हमारे history class में इतना interesting part क्यों नहीं था? When I was at my school, history classes were my favorite classes. Thanks to my teacher, because she would dramatize everything. She would talk about, and then Bahadur Shah Zafar was lying in the bed, and from the other side the Britishers marched in. So I had never heard history as a boring subject through my school. So whenever when I thought of making a film, history came very naturally to me. Right now it seems like the history is little out of fashion, but actually a film like this, it's more than history, it's about human spirit. It's about the spirit that doesn't let you ever die. It's a spirit which pops up. So somewhere for me it was a very human story, emotional story, which I thought that I was blessed that the story came to me, because it's a very inspiring story. How did it come to you, if I may ask? Okay, frankly speaking, like taking from where Sanjeev sir left, we met some 4 years back. I was working on some other film. The film did not get the sort of making that I wanted it to get. So I was looking for another subject. And I come in from a school where there has to be a reason for me to make the film. It cannot be that, yeah, I am a filmmaker by profession, I am a filmmaker by my qualification, there is nothing else I can do. You can ask my assistants, I am even bad at switching on a laptop. So there was nothing else that I could have done but to make another film or write another film. And that's when I was thinking, writing, and I was writing about someone else. I was actually writing about J.R.D. Tata. I wanted to make a biopic on his life. And I wanted to touch the angle where he was the first Indian to get a pilot license. He flew a flight from Karachi to Bombay. That was the first flight in modern era. It was quite inspiring for me. But then I thought that probably someone like J.D. Tata had all the resources in the world to be able to do it. He went abroad, he studied in London, he came in from a very educated family, very prosperous family. So I started thinking about ऐसा क्या मुमकिन है कि किसी और ने कुछ और. And then suddenly it just happened. I just suddenly met someone who told me that what you're talking about is not true. There was someone else who had done it much before all of them put together. And I said, what are you talking about? And then someone dropped me the name. And I thought it was too unbelievable to be true. It was too inspiring to be true. Then I started researching. I read more, met more people, went out, and slowly, the film started taking shape. The look is fantastic. Something unreal. It just doesn't look like anything I've seen on screen before visually.
I'll take that as a compliment. Absolutely. And like I asked you before, how have you managed this feat? Because बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है in terms of the era and yet looking contemporary. Yeah, it was very easy for us to make a very niche sort of a film. It was very easy for us to make a very, so as to say, authentic, realistic cinema. Not that I have anything against it, but somewhere I wanted to reach out to the lowest common denominator. I wanted to, because this is a story which is beyond just the realm of the story per se. It's so much emotional and inspirational. It had to reach out to the larger people, for which I realized that we need to do it in a way which they aspire to be. So that's one reason why it looks the way it looks. And also I couldn't have done this alone. There's a huge team which has done this. My DP, Savita, my costume, Sahil, my art team, Amit and Subroto, my assistants, all of them, my makeup team, everyone is put in their best efforts. That's why you see it the way it looks right now to you. That's fantastic, Vibhu. And I think the beauty of the movie is how you've managed to still make it look so different from what we've already seen on screen before. Where all have you shot it? और इसमें कितनी reality है और कितना आपका एक perspective है? We've shot it in Bombay, we've shot it in Gujarat, we've shot it in small places like Wakaner and Gondal in Gujarat, Rajkot. A lot of it is on sets in Bombay. As far as the real and fabrication goes, very little is available about the gentleman on records. Yeah. So somewhere we had to construct a narrative around him, and that narrative was the pulling force behind construction of the narrative was that it has to be a story which needs to reach out. There is one thing of saying a story, the other thing is people hearing it. So for me it was more important that I need to speak in a language which people understand. So that is why we had to dramatize a little bit of the narrative. And for the people who motioned this on screen for you, playing those fantastic characters, I would request you to call them right here. Please, my partners in crime, Pallavi and Ayushman. Quickly a question for you, Ayushman. इससे पहले कोई और कुछ ये आप लड़का कब बन गए? इन्होंने कहा कि मैं लड़का हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन seriously, from a man to a लड़का, ये क्या हो गया? I don't know यार, I think ये फिल्म की लुक भी है एक तरह से. In fact, I'm wearing my glasses and my hairdo is different in this film. Or I'm proud of a part of this project. I think Vibhu Puri is a prodigy. You have to watch his short film also, which was nominated for Student Academy Awards. He's a great linguist. जिस भाषा में I think जो हम तरस जाते हैं सुनने के लिए हिंदुस्तानी सिनेमा में वो आपको भाषा सुनने को मिलेगी. इनके डायलॉग्स कमाल के हैं. ये I think he's 34-35, a Punjabi boy from Delhi, but he can read and write in Urdu because he loves that language. तो आपको वो. But out here we are here to talk about the film. Of course, it is about the film. It is about the film. The language in the film is, I think, the purer form of what we normally speak. I think it's amazing, and he's done an incredible job in the film. How did you become a boy? यार मैं लड़का ही तो था शुरू से. Was Vicky मैं कौन सा Donor लड़की a था? man or a boy? He was a man with the kind of work he was up to, yeah? So, Probably I've lost weight maybe, yeah, that's why I'm looking young. you know, and Marathi, Like that was 15. was that really you? I Of was course. trying Like मला सगळं समजतं. मतलब 5 years in Bombay, but I've understood. I can understand everything. I mean, जिस जहाँ पे आप रहते हैं, ये मेरी कर्म भूमि है और यहाँ की भाषा मुझे समझ आनी चाहिए. और इस फिल्म के लिए उसके लिए बहुत काम किया है. Our co-writer Saurabh Bhave, he's a Maharashtrian and he's done a tremendous job. I think he was there on the set throughout to help me with the diction. Pallavi, it's fabulous to see you in another avatar doing this, you know, dance with sort of feel. I want to ask you कि आपके लिए subject कितना exciting था, because let's face it, आपने right from Karan Johar canvas to Madhur Bhandarkar and now this in between realism and, you know, somewhere kind of fiction stories become a part of your bouquet as well. I think I was very excited when Vibhu came to me with this film because, first of all, it's based on a historical subject and it's something which is very rare to be able to do as an actor, female actor in this industry so early in your career. So I was very honored that Vibhu thought that I was somewhat capable or capable enough to pull off something which has to take people to another world, which has to transport people.
And that's something which happens very rarely in one's lifetime as an actor. So I'm just very grateful for the opportunity, and I feel very honored that I got to work with these two guys. You seem very adventurous. How close have you come to flying yourself? आपने क्या किया है उड़ने के लिए? नहीं, ये लोग अपने लिए रख रहे थे. The boys were doing all the flying and all the Marathi speaking. Every time I try to do something, they're like, नहीं, तुम नहीं बोलोगे, मतलब ये बोलेगा. इसको अच्छे रिव्यूज चाहिए. नहीं मतलब एक्सक्यूज मी, आप तो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं जहाँ पे वहाँ पे हर जगह पे ये एडवेंचर हो रहा है, तो हाँ जी. आपने उड़ने के मामले में क्या किया है? मैं बहुत प्लेन पे चढ़ती हूँ ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे और मेलबर्न के बीच में जाने के लिए. बट अदर देन दैट, बट आई विल से दैट एवरी टाइम आई एम ऑन अ फ्लाइट नाउ, आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, because I understand what we take it for granted in today's day and age, that we're able to get somewhere from A to B very quickly. And being on this project, it made me realize that how recent it was that this invention occurred. And I used to love a film growing up called Those Magnificent Men and Their Flying Machines. And it was something that I loved watching, and it felt like I was on a set very similar to that, where we're actually at that point where civilization is changing. आयुष्मान, आपने एक्चुअली एक आर्टिकल मैंने आज पढ़ा कि आप यू आर गोइंग टू लर्न फ्लाइंग आफ्टर दिस फिल्म. इज इट बिकॉज ऑफ द फिल्म? ट्रूली टेल मी, या आपके कीड़े जो बहुत सारे? I think there's this aspiration in our country to fly. In fact, आप किसी भी मिडिल क्लास इंसान से पूछेंगे या किसी भी लो मिडिल क्लास इंसान से पूछेंगे, यार एक बार प्लेन में बैठना है. आई थिंक इस बार we live in an era where I think everybody can afford an air ticket. But when I think in 80s, 90s, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट के बाहर लोग ऐसे खड़े रहते थे, एयरप्लेन उड़ता तो ऐसे देखते थे. So I think with that fascination in mind, I always loved flying. तो मैं उड़ना चाहता हूँ, फिल्म के ज़रिए भी और हवाई जहाज़ के ज़रिए. आपकी पहली फ्लाइट आपको याद है जो आपने ली थी? Of course, it was pretty late. In fact, I was in 11th standard, 12th standard, और मैं कर्नाटका PMT के कर्नाटका CET के इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम्स देने गया था बैंगलोर. That was the first time. I think all the students who were traveling there, they were traveling for the first time by air. और जैसे ही flight take off हुआ, everybody started clapping inside the plane. How did the exam So go? funny. Exam I didn't clear. Sanjeev ji, please join us right here as we're about to unveil something very, very anokha. Are you both ready to do this for everyone Yes, here? of course. I think everyone, ladies and gentlemen, we have another character or part of our film amongst us today, and we would like to welcome that character on stage to be with us, because it's very special and integral to what we've done here. Before that, I think we should invite Naman on stage. He's also playing a great character. Naman. Naman. Naman Jain. How are you? Shitambar. Somewhere the film is about three boys in the film. One is Mithunda, the second one is Ayushman, and the third one is him. One after the other. That's the three generations of the film actually. Serious effort. I don't plan my life. It's just that whatever comes organically. And there was no plan, you know. He just met me like 2 years back, immediately after Vicky Donor, and he offered me this amazing story of an unsung hero. And the way he's fictionalized it, the way he has taken the creative liberty and added his own flavor to the story of the guy who made world's first aircraft is incredible. So I think there was no plan, but yes, this will be an image change by default, because I've been playing a quintessential North Indian guy till now, and this time I'm playing a Maharashtrian. Okay, I think we should talk about Hawai Zada as of now, but yeah, after that I'm doing a film called, I've completed a film called Dam Laga Ke Aisha, where I'm playing a UP wala, a simpleton from Haridwar. So that's also like way a part of her characters which I've played till now. हेलो, Hi, Sat Sri Akal, की हाल है? सत श्री अकाल. बढ़िया. ट्रेलर बहुत ही चंगा है, बहुत ही बढ़िया. Thanks यार, thanks. मेरा सवाल है सर कि इस रोल के प्रिपरेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द लैंग्वेज, इट वाज अ बिग चैलेंज, तो इसके अलावा आपने और क्या क्या प्रिपरेशंस की? मतलब ऐसा ही रोल एकदम आ गया आप इस रोल Of course, in fact, मुझे लगता है मुझे अपने आप को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. Even the body language, the way I talk, walk or stand, it's entirely different from what I am in real life. तो वो बहुत ज़रूरी था. और उसमें I think विभू played a great role. यार, इन्होंने he extracted the best out of me. और भाषा अलग थी, मेलियो अलग था. एक I love living the past as well. Nostalgia जो है बहुत ही एक अच्छा कीड़ा होता है जो हमें पसंद आता है. एंड मुझे लगता है कि हर एक को एक रेट्रो फील वाली फिल्म्स, रेट्रो फील वाली गाने, रेट्रो फील वाले सीन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. I think you'll be gratified when you see this film. You'll be transported like 150 years back, and you'll see the aircraft for the first time. जो इंसान पहली बार एक हवाई जहाज़ में बैठा था, उसका एक्सपीरियंस आप खुद यहाँ पर बैठ के सिनेमा हॉल में बैठ कर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, which is amazing.
fact, I think I'm doing too many things in one time. I'm singing, I'm acting, I'm anchoring. So apart from that, इस film को बनने में time लगना ही था. It's like making the first aircraft of the world. This film was as difficult as making the first aircraft of the world. And I think we took a good 1.5 years, and he lived with the script for like 3 years. Yeah, and I think this was a difficult film, so इसको time तो लगना ही था. And of course, there's no conscious effort कि मैं अपनी film delay करूँगा, ऐसा कोई भी नहीं करेगा. But yeah, this kind of film required that amount of time and effort, and I think when you see the film, you realize what I'm talking about. Very innovative. I'm late. I could not see the trailer. My question is to you that you have worked like being a arrogant girl in a Besaram and in this film Hawai Zada. So how do you differentiate yourself, and what are the challenges you faced that in comparing to that film and this film? Thank you for the question. I think both the films are very different. The previous film in which I was, it was a film about today. It was about today's girl. Hawai Zada is taking me back 125 years. So I think what was really difficult was actually getting into that zone and understanding that time frame. And having been someone who's born and brought out outside of India, to actually understand the historical context of the film was even more challenging. So there were so many different elements, and as Ayushmann said, Vibhu was integral to understanding that time, understanding the script and getting into character. And it was definitely something which really involved a complete mindset change, much more than anything that I've ever had to do before. My question to director Bibu sir. Sir, you have taken Ayushmann Khurrana. He's known as a very naughty boy. So how did you manage on sets to take a good shots from him? तुम्हें कैसे पता लगा naughty हूँ यार? पहली film पे judge कर रहा हूँ मेरी. He is playing a naughty boy in the film also. So naughty boys are the people who change history. So he is playing a naughty boy. Pallavi, in the poster behind you, I just see Ayushmann and the aeroplane. I don't see you. Hanji. Is this an out and out Ayushmann movie? ये Aeroplane के अंदर बैठी हुई पीछे. तो मैंने छुपा दिया उसको ऐसे करके. So Ayushmann's answered your question. मूवी ऐतिहासिक है, तो आपको स्कूल में मतलब जब आप पढ़ते थे आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना पसंद था? हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद था. मेरे 10th स्टैंडर्ड में 93 आए थे सोशल साइंस में. यस, इट्स अ फैक्ट. ये भी एक हिस्ट्री है, लेकिन हाँ उस हिस्ट्री बुक में इस इंसान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था. दैट्स व्हाई आई थिंक ये स्टोरी जो है ज़्यादा लोगों को अपील करेगी. इट्स लाइक अबाउट एन अनसंग हीरो जिसके बारे में कभी सुना नहीं है आपने. आप गूगल में भी उसको टाइप करेंगे इनका नाम तो 80 से 100 वर्ड्स लिखे होंगे इनके बारे में. इसलिए एक फिक्शनलाइज स्टोरी बिल्ड करना ज़रूरी था इसके इर्द गिर्द, जो विभु ने लिखी है और सौरभ भावे ने इसका स्क्रीन प्ले भी किया है साथ में. सो हाँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद था, लेकिन अगर ये फिल्म देखने के बाद आपको शायद हिस्ट्री बुक्स में थोड़ी तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी. आपका इस फिल्म में गाना भी है, आपके गाने हमेशा हिट जी बिल्कुल, गाना है इसके अंदर. आपने अब तक मेरे पंजाबी गाने ज़्यादा सुने और हिंदी 1-2 सुने होंगे, लेकिन इसमें उर्दू मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की गज़ल है दिल नादा, उसका रेंडिशन मैंने किया है. एंड it's the most commercial rendition of Dil Nada, most consumer friendly rendition of Dil Nada. इसके 2 versions इसमें आएंगे, one is the ghazal version, one is the alternate version. So And I also want to add out here that this is the first time he's also composed the song all by himself. So he's also turning a full-time composer. of course, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जोड़ीदार रोचक कोहली से हो जाऊंगा. He's also composed 3 beautiful songs in the film, and I think इस फिल्म का जो एल्बम है, एक जो वैरायटी है गानों में, वो अनबिलीवेबल है. किसी भी और फिल्म में आपको सुनाई नहीं देगी. और इसमें आप उड़ रहे हैं, तो मतलब नॉर्मल चीजें सबको नहीं पता है वैसे. वो सीन्स हमने काट दिए थे. और ये हवाई ज़्यादा में आप उड़ रहे हैं, एक पे आपने नौटंकी की थी, तो मतलब नॉर्मल चीजें करना आपको पसंद नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद मेरी दूसरी अब नॉर्मल या फिर टेक्सचर्ड फिल्म है. कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म मेरी दूसरी है. पहली विकी डोनर थी, दूसरी हवाई ज़्यादा है. नॉर्मली मैं अपना ट्विटर हैंडल चेंज नहीं करता हूँ. विकी डोनर के टाइम चेंज किया, दूसरा मैंने हवाई ज़्यादा के टाइम किया, बिकॉज दोनों फिल्में बहुत ही अलग हैं, बहुत ही कल्ट स्टेटस की फिल्में हैं. आई थिंक दिस इज़ माई सेकंड कल्ट फिल्म. रिलीज होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू डू रियली वेल एंड आई थिंक यू गोइंग टू लव दिस फिल्म. और ये वेट रिड्यूस करना और वेट गेन करना फिल्म के लिए आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है और मतलब हार्मफुल है? आई थिंक अगर आप नेचुरली वेट रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है. मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्ट है,
तो मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बस 6 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाता हूँ। और वेट रिड्यूस करने का जो रीज़न है वो अगली फिल्म के का है। नहीं तो अभी मैं ऐसे ना बैठा होता क्योंकि दम लगा कि आयुषा में मेरी शादी एक मोटी लड़की से हो जाती है, तो मुझे मेरा पतला दिखना बहुत ज़रूरी था बहुत। Okay, thank you. Films that are based on history attract controversies, but because there is not known about the film, are you expecting anything? Do you think there might be anything that might hurt anybody's? No, I don't think there is. It's a film about celebration. It's a film about joy, and I don't think anyone will have any sort of objection if we celebrate something. अगर हम आपके बारे में कुछ गलत बोलें, बुरा बोलें, तो शायद आपको दिक्कत हो, आपत्ति हो, पर हम लोग किसी के बारे में कुछ बुरा बोल ही नहीं। मुझे लगता है कि राइट बंधुओं की फैमिली को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, हिंदुस्तानियों को तो नहीं हो सकती। Character that we see here, you know, desire to create history. So I would like to know what were your aspirations? You know, I want to know Ayushman's aspirations when he was a kid or a youngster. I think Ayushman's aspirations were becoming an actor, a singer, maybe a presenter, and I think I'm धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ सारी aspirations पूरी करने की, and I think I'm quite fortunate that I'm one of those few people who can just make a career out of their passion. कुछ है जो बाकी रह गया है? I think एक ज़िंदगी जीने के लिए एक ही पैशन काफ़ी होता है। हाँ, फ्लाइंग, मे बी हवाई जहाज उड़ाने का एक पैशन है, पूरा करने वाला हूँ। I want to know about his plans. Of course we can go together for New Year night. But yeah, New Year's का ये problem होती है, all the artists are actually booked for the New Year's. So most of the festivals, most of the artists are either performing or are busy with other events. I'm also busy doing an event, yeah. So. Where are you performing? Now this is getting into a little personal space. ये हम बाद में भी कर सकते हैं। आयुष्मान, आपने जैसे बताया आप कंपोज भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं दिल नादान, तो अगर आप 2 लाइन अभी हमें सुना दें अभी प्लीज। तो रिलीज ही नहीं हुआ गाना, कैसे सुना सकते हो? एक लाइन। हाँ, काश यार गिटार होता तो ज़्यादा अच्छा सुनाई पड़ता है। रोचक गिटार नहीं कैरी कर। रोचक किधर है गिटार? Okay, there's no guitar. It goes like दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। Goes like that. पल्लवी, आपके जो को एक्टर है वो काफी क्रिएटिव है, मतलब गाने गाते हैं, इतनी नमन? अच्छी एक्टिंग अच्छा, करते हैं। हाँ, आयुष्मान गाने भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो उन्होंने सेट पे आपने उनसे कोई टिप्स ली, मतलब कुछ सीखा उनसे? हम क्रिकेट खेलते थे एक साथ और मैं बहुत अच्छी बॉलर हूँ और उनको ये पता नहीं था, तो और मैं बैटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, ये नहीं है। सब हंस रहे हैं यहाँ पे। आयुष्मान होल स्टाफ इज लाफिंग बिकॉज आई वुडंट गेट आउट एंड दे हैड टू गिव मी 3 chances. No, it's because they would bowl me out. यही करते थे हम लोग, आवारागर्दी करते थे। trained Bharatnatyam dancer. So he used to do his riyaz for his singing and his classical singing, and I would do riyaz for Bharatnatyam in the next room. So I think we drove everyone a bit crazy. I didn't say same room. Dude, I would have been crazy. See, the film is a work of drama, right? The facts about the inventor and the flight have existed for a long time. You just have to go to the internet and look it up, and you'll find a lot of information. If this film helps in bringing attention to somebody's creation and his work of passion, I think we will be extraordinarily gratified. However, is this story the actual story? It's a film, it's not a documentary. We have obviously taken a lot of dramatic license with the way that the story is told. We are going to approach the government to make this film tax-free. Because I believe that as a nation we should celebrate an event like this or a person like this for his passion, his work, his indomitable spirit, and all the obstacles that he had to overcome in order to do what he did. And I think all of us have got reason to be very, very proud of him. You know, we are really seeing a different Ayushman in the film. The look, you know, the way he look in the film. Would like to know on what were the criteria and benchmark for you when you have set the look of him?
I mean, of the character? I'm too instinctive to think that much. I don't think much. Whatever I like doing, I do. And Ayushmann was supportive enough to let me do whatever I felt like. There were 8 look tests. 9 actually. 9 look tests. We were just testing for 2 months. So for 2 months, every second day we would call him to the office, do a makeup trial, do a mustache trial, do a hair trial, do a costume trial. We had nothing else to do, so we liked it. And Ayushmann, my question is to you, have anyone told you that somewhere down the line you're looking like Ranbir Kapoor from a distance? I don't know, probably his distant cousin. No, I felt so. वो कपूर है, मैं खुराना हूँ, पंजाबियों में थोड़ा सा कुछ सिमिलर तो हो ही सकता है. काफी अलग दिखते हैं, मैं बता दूं सबको. And my इन्होंने करीब से देखा दोनों को, तो इनको पता है. I have a different question. If you can answer, please. Recently, Youngistan has got the entry into the Oscar run. So, would you like to comment on that, please? Anyone? Congratulations to the team. Well done. Thank you so much, members of media. We're going to have a little photo op with the other planes that are there outside. So we'd like you to go and make sure you get your pictures with Ayushmann and Pallavi. Thank you very much. On the beach with Ayushmann and the plane, and I think जो response है बहुत अच्छा है, which means कि it's working. Of course, I think अगर आप एक vintage plane खड़ा कर देते हैं किसी बीच के ऊपर, everybody gets really intrigued. सबको लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, बहुत ही पुराना प्लेन यहाँ पर क्या कर रहा है. ऑफ कोर्स इट्स अबाउट हवाईज़ादा. जो पहला प्लेन दुनिया का उड़ा था वो ये था, उसको मारुतसुका कहते थे, और मारुतसुका उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. राइट ब्रदर्स से उन्होंने चलाया था, लेकिन जो फैक्ट उसके हिसाब से मुंबई में पहली बार, तो इस तरह का कोई चीज़ हम फिल्म में देखेंगे, और क्या जो राइट ब्रदर्स की कहानी वो भी कुछ सामने आएगी, और क्या इस तरह की बात कहने की कोशिश की जा रही है, साबित करने की कि ये प्लेन पहले मुंबई में इतिहास बदलने क्या जा रहा है. आई थिंक इतिहास ऑफकोर्स ये अनटोल्ड स्टोरी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, पर 1895 में चौपाटी पर 18 मिनट तक शिवकर तलपदे ने विमान उड़ाया था. बाल गंगाधर तिलक वहाँ पर मौजूद थे, अराउंड 500 लोग मौजूद थे. 18 मिनट तक उड़ा था प्लेन. और बेसिकली कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसका कोई पेटेंट नहीं हुआ है क्योंकि हम ब्रिटिश राज के अंदर थे, कॉलोनी थी इंडिया एक. लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म के बाद अभी भी काफ़ी, आई थिंक वी मेड लॉट ऑफ नॉइज, काफ़ी साइंस जो संस्था कहाँ पे, साइंस एसोसिएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर, हाँ इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर काफ़ी डिबेट हुई थी इसके बारे में. एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग द ट्रेलर एज वेल. आसाराम जी के फेसबुक पेज पर भी शिवकर तलपदे का जिक्र हुआ है आजकल. उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं शिवकर तलपदे की, विच इज रियली एनकरेजिंग फॉर द फिल्म एज वेल. बाबा रामदेव, मैंने क्या बोला? सॉरी बाबा रामदेव. अब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप होने वाला है, और मुझे लगता है हर एक विमान का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी टीम जब भी ट्रैवल करती है. तो आई टॉक अबाउट मारुतसुका का जो हमारा विमान है, और आई विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली विराट कोहली माय फेवरेट प्लेयर. क्योंकि हवाईज़ादा और बंदरगाह की ऐसा की प्रमोशन भी चलने वाली है, सर्दियों में शूट होनी है वहाँ पर, इसलिए मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ. थैंक यू सो मच. ट्रेलर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हवाईज़ादा के, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेलर था यूट्यूब पे. आई थिंक वी रीच्ड 1 मिलियन इन 3 days, विच इज़ अमेजिंग. और उसके अलावा काफ़ी नॉवल आइडिया है हमारी फिल्म का, मतलब ऐसा इंसान जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था और एक इंडियन है. ये सुनकर आई थिंक हर कोई इंट्रीग हो जाता है, जानना चाहता है ऐसी कहानी के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में. तो आई थिंक अगर आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, नॉवल है, अलग है, तो आई थिंक इट डेफिनेटली ग्रैब्स आई बॉल्स. कैरेक्टर की बात करें तो काफ़ी अलग कैरेक्टर लग रहा है. काफ़ी आपने लुक के ऊपर बहुत मेहनत दिखाई है. किस तरह से ये पूरे कैरेक्टर के बारे में आप बताना चाहें? ये कैरेक्टर एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर है. 1895 की हम बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब जो आपकी ज़ुबान है काफ़ी प्योर होती थी. तो इस फिल्म के अंदर आपको देखा जाएगा कि हिंदी, उर्दू और मराठी का बहुत अच्छा मिक्स है. विभू पुरी जो डायरेक्टर हैं हमारे, 35 साल के, ही इज़ 35-year-old गाय फ्रॉम दिल्ली, पंजाबी हैं, लेकिन उनको उर्दू लिखनी पढ़नी आती है, कि उनको पैशनेट इतना है वो लैंग्वेज के लिए, तभी उन्होंने फिल्म में 7 में से 6 गाने लिखे हैं. वो आपको ज़ुबान का जो फ्लेवर है वो आपको फिल्म के अंदर भी नज़र आएगा. ऐसे डायलॉग्स आजकल आप
आप सुन नहीं पाते हैं, आज कुछ सुनाई नहीं पड़ने पड़ते हैं आपको। अब मैं काफ़ी डायलॉग एक बोलना चाहता हूँ डायलॉग फिल्म का, वो है हाथों की लकीरों पर हाथों की लकीरों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन है कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियाँ सच क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हम बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ देते हैं। मतलब इतनी खूबसूरत लाइनें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी, खूबसूरत फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक फ्रेम्स ऑफ द फिल्म दे लुक लाइक पेंटिंग्स, इतना खूबसूरत है। और आइडिया तो इवेंचुअली फिल्म का कमाल का ही है। आई थिंक इट्स अ पोटेंशियल कल्ट फिल्म अगर सब कुछ सही जाता है तो। 19th सेंचुरी पे बेस्ड है फिल्म जो भी है, का जो लुक है वो काफ़ी किसी से इंस्पायर्ड हुआ है, ये जो लुक है? आई थिंक लुक थोड़ा हैरी पॉटर से मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इंस्पायर हुआ है। इसके ग्लासेस राउंड हैं क्योंकि इसको एक गीक, एक नर्ड लुक देना था कैरेक्टर को, और थोड़ा वल्नरेबल दिखाना था। इसको मस्कुलर नहीं दिखाना था, पतला दिखाना था, क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ जीनियस, वो कोई बल्कि इंसान नहीं हो सकता। तो ये लुक जो है उसको 7 लुक टेस्ट देने पड़े, 2 महीने लगे लुक क्रैक करने के लिए। फिल्म में आपके साथ मिथुन जी है, पल्लवी शारदा है, क्या कैसी केमिस्ट्री रही तीनों के साथ? आई थिंक मिथुन दा एक लेजेंडरी एक्टर है। मोर देन एक्टिंग आप उनसे जीने का जज्बा सीखते हैं, और वही जीने का जज्बे पे हमने फिल्म बनाई है हवाईज़ादा। पल्लवी शारदा, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। फिल्म के अंदर तमाशा डांसर का रोल कर रही हैं, एंड शी इज़ अ क्लासिकली ट्रेन डांसर। वो एक प्री रिक्विजिट था डायरेक्टर के लिए कि एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो क्लासिकली ट्रेन डांसर हो। शी इज़ अ भरतनाट्यम डांसर एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड। इनफैक्ट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। फिल्म में अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो ये जो स्क्रिप्ट है, किस तरह से स्क्रिप्ट आपके पास किस तरह से आई? ये पहली फिल्म के वक्त ही आ गई थी या आफ्टर बेवकूफ़ियाँ? ये फिल्म मुझे विक्की डोनर के बाद अप्रोच किया गया था। विभू पुरी मुझे मिले थे एक रेस्टोरेंट में, और उन्होंने मुझे 1 लाइनर दिया था। तब से मैं इम्प्रेस हो गया था काफ़ी, एंड इवेंचुअली इस फिल्म को शूट करते करते 1.5 साल लग गए, क्योंकि काफ़ी एलैबोरेट सेटअप है इस फिल्म का। सेट्स काफ़ी एलैबोरेट हैं। हमने जो आउटडोर है वो सर्दियों में शूट करना था। हमारा सेट गुजरात में लगा था, एक बॉम्बे हमने क्रिएट किया था गुजरात के अंदर, और इसलिए हमें 2 सर्दियाँ लग गई शूट करने में, क्योंकि गर्मियों में आप वहाँ शूट कर नहीं सकते। हिस्ट्री की बात करें तो आपको कितनी रुचि है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में मुझे काफ़ी रुचि है। इनफैक्ट 10th स्टैंडर्ड में 93 आए थे हिस्ट्री में, मुझे याद है, सोशल साइंस में। आई लव इंडियन हिस्ट्री, और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ, आपको वैदिक रेफरेंसेस मिलेंगे, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलेंगे, आपको साइंटिफिक रेफरेंसेस मिलेंगे। ऐसी नॉवल चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको आमतौर पर सिनेमा में दिखाई नहीं देती। ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि एक इंडियन ने सबसे पहले जो फ्लाइट का जो किस्सा था ये पूरा उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड वी थॉट इट वाज राइट ब्रदर्स? आई थिंक आई वाज शॉक्ड, इनफैक्ट प्लेजेंटली शॉक्ड, जब मुझे पता चला कि एक इंडियन ने पहला विमान बनाया था दुनिया का बिफोर राइट ब्रदर्स। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर था, हम कॉलोनी थे, तब पेटेंट नहीं हुआ था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, देयर इज़ नो प्रूफ बिहाइंड इट। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास। पर अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है तो आई थिंक एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है फिल्म के लिए। ओके, तो फाइनली किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप हवाईज़ादा के बारे में? हवाईज़ादा के बारे में यही बोलना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कंपेलिंग, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल फिल्म है एक अंडरडॉग की, जिसने दुनिया का पहला विमान बनाया था। और अगर वो इंडियन है तो आई थिंक हर एक भारतीय का उत्तरदायित्व है कि इस फिल्म को देखे। और 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हो रही है हवाईज़ादा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पल्लवी, सबसे पहले तो फिल्म हवाईज़ादा किस तरह की फिल्म होगी? हवाईज़ादा एक बहुत सुंदर फिल्म होगी, जिसमें आपको एक इतिहास की कहानी देखने को मिलेगी, एक ऐसे आदमी के बारे में जो अभी तक लोगों को पता नहीं है ज़्यादा उसके बारे में। एंड उस दुनिया में, मतलब हमने बहुत सुंदर दुनिया बनाया है इस आदमी के अराउंड। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं विभू पुरी, एक बहुत ही, मतलब उनका जो एस्थेटिक है वो बहुत ही सुंदरता से चीज़ें करते हैं। तो आपको बहुत सुंदर पिक्चर देखने को मिलेगी, एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, एक गुरु शिष्य की स्टोरी देखने को मिलेगी, और एक बहुत सुंदर दुनिया देखने को मिलेगी। अच्छा, आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो, और आपने जो किरदार निभाया मराठी लड़की का है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक्चुअली गलत फहमी है, जो मराठी किरदार है वो है आयुष्मान खुराना का। मैं मेरा एम्बिगियस बैकग्राउंड है इस फिल्म में, क्योंकि असल में मैं आधी पंजाबी हूँ और आधी यूपीआई। अगर हम अपने नाम के और बात के बारे में बात करें, तो मेरा जो सिर्फ चेहरा है
बहुत पैन इंडियन है। असल में लोग कहते हैं कि आप बंगाली दिखते हो, पंजाबी दिखते हो, साउथ इंडियन दिखते हो, महाराष्ट्रियन भी दिख सकते हो। तो क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो एक डांसर का है, हमने उसका थोड़ा एम्बिग्यूअस रखा है क्योंकि वो कहीं से भी हो सकती है। वो ट्रैवल करती है इंडिया के थ्रू आउट अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ये एक महाराष्ट्र मुलगी नहीं है, पर थोड़ा सा वो फ्लेवर दिया गया है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि वो लड़की जो है डांसर है, तो आप भी भरतनाट्यम में जो है भरतनाट्यम कर चुके हैं, तो फिल्म में क्या ऐसे ही कुछ दिखाया जाएगा डांस का? नहीं, ऐसा भरतनाट्यम एक बहुत ही प्योर क्लासिकल फॉर्म है जो मैंने सीखा है, 15 साल से ज्यादा सीखा है मैंने। पर हमने जो इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अलग है। वो मतलब हमने खुद ड्रीम किया है, इमेजिन किया है, विभू ने इमेजिन किया है, हमारे कोरियोग्राफर लॉन्जीनस फर्नांडिस ने इमेजिन किया है। तो मैं एक्चुअली मुश्किल होती है मुझे बताने की क्या स्टाइल क्या है इसका, क्योंकि बहुत ही कुछ अलग है। तमाशा से इंस्पायर्ड है, लावनी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, पर सबसे ज्यादा आई थिंक एक परफॉर्मेंस है, ग्लोबल परफॉर्मेंस है। आपको थोड़े से स्पेनिश एलिमेंट्स के स्टेप्स दिखेंगे। हमारे साथ सेट पे एक बहुत सुंदर लावनी डांसर रहा करती थी और उन्होंने मुझे थोड़ा सा लावनी अदा के बारे में बताया। पर एक मतलब जैसे बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म में होते हैं, काफी स्टाइल से बोरो किया हुआ वैसा एक डांस है। अच्छा, जैसे कि फिल्म जो है हिस्ट्री की कहानी पर है, तो जब आपको अप्रोच किया गया फिल्म के लिए, तो आपको पता था कि ऐसा कुछ राइट ब्रदर्स अभी तक सबको पता था, लेकिन ये वाला हिस्ट्री पता था आपको? नहीं, ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, जब नरेशन हुई थी विभू पुरी के साथ, तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा एक आदमी हुआ करता था। और बहुत इंटरेस्ट ली मैंने उसमें, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स इंजीनियर हैं। तो मैंने तुरंत अपने पापा से फोन किया था कि ये कैसे हो सकता था क्या, तो ऐसे हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, एंड हुआ है। तो आई थिंक कि पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि ये एक बहुत सुंदर स्टोरी है, अगर रियल स्टोरी है तो हमको सबको बताना चाहिए। पल्लवी, अगर फिल्मों की बात करें तो माय नेम इज खान से जो शुरुआत हुई थी याद है आपको? किसी को याद नहीं है? आज हवाईजादा, तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू in the industry? It has been very challenging for me. I think people don't realize how challenging it is for somebody from the outside, and I'm not going to pretend that it was an easy journey, because it has definitely been the hardest thing I've done in my life. I did not anticipate having to go through anything this tough. Ye nahi kahungi that I've gone through some huge trauma, but it's definitely tough when you want to change your destiny on your own. ओके, बेशरम की बात करें तो बेशरम ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, इट वाज अबव एवरेज। सो डू यू एक्सपेक्ट कि हवाईजादे से एक और स्टार्ट मिलना चाहिए आपके करियर को? मुझे मतलब हर साल स्टार्ट मिलता है, आई एम वेरी लकी दैट वे। सो आई थिंक कि बेशरम के बाद मुझे एक और स्टार्ट नहीं मिली है, मतलब मुझे एक और मौका मिला है दिखाने को दर्शकों को कि मैं ऐसे भी किरदार निभा सकती हूँ। आई बिलीव कि मैं एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हूँ। आई होप कि लोगों को काम पसंद आए। अंत में वही मायने रखता है कि लोगों को कैसा लगता है परफॉर्मेंस। बट ये फिल्म ज्यादातर आयुष्मान और मिथुन दा की जो कहानी है उस पे है, मेरी लव स्टोरी पे है। इट्स अ ग्लोबल फिल्म फॉर विद एन एंसेम्बल कास्ट, सो आई जस्ट होप पीपल लाइक माय पार्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, अगर रियल लाइफ की बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़ना कितना पसंद है, और स्कूल में जी कैसे मतलब हिस्ट्री के साथ? पहले शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। पर धीरे धीरे इतना पसंद आने लगा कि मैंने 12th में मैंने हिस्ट्री की थी। आई डिड रिनेसेंस इटली हिस्ट्री, तो सारा जो डिविंची आर्ट है, that whole era of the Renaissance in Italy. I studied it in 12th standard for a long time. I did classical history and cultures. So I studied about Greek mythology. I studied philosophy where I did Plato and Socrates. So yes, I think I have a huge humanities interest, and history is one of those. So I think it's great because this film is both intellectually and artistically stimulating. Okay, अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो आपने जैसे अभी कहा कि मैंने फिलोसफी की है, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, तो बॉलीवुड में आने का आपका इंस्पिरेशन किस तरह से आया? आई थिंक जो बॉलीवुड का मैजिक है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप बचपन में अगर आपके पापा आपको एक बॉलीवुड फिल्म दिखाएंगे और आप मेलबर्न में बैठे हो, आप चौंक जाओगे, ये क्या है, ये लोग मतलब पेड़ों के बीच में नाच रहे खुल के और इतने हंसी मजाक हो रही है। It's really a magical world, and it provides escapism, and it
for me provided a world, a lens into India, into the country that my parents came from. Obviously my parents came from New Delhi. वो तो मतलब ऐसे गाते तो नहीं थे ना बचपन में, but it gives you a sense of this is a dream world that I can be a part of and that we are sharing with so many people. फिल्मों की बात करें तो आजकल वुमेन प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं, मर्दानी हो गया या भी ऐश्वर्या राय के जो जज्बा आने वाली है, ऐसे फिल्में बहुत आ रही है, तो इन फ्यूचर ऐसे कोई फिल्में करना फिलहाल आप पसंद करेंगे या यू जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन सम काइंड ऑफ रोमांटिक फिल्म? No, of course I would love to. I think धीरे-धीरे hopefully I will get those opportunities. I think it's a slow process in any industry, but in our industry you really have to prove your mettle, and I hope that I'm able to do that through my work, and at some point people will consider me able enough to carry a film like that. अच्छा, आपने कहा कि आपकी लव स्टोरी है फिल्म में, तो केमिस्ट्री दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है यूजुअली, तो आपकी केमिस्ट्री कैसी थी आयुष्मान के साथ और कैसे आपने देखिए आयुष्मान इंजीनियरिंग और फिजिक्स कर रहे हैं फिल्म में, तो केमिस्ट्री मैंने की है। वो आपको ये गाना पसंद आया माजा मानो, देखा आपने? उसमें केमिस्ट्री डंकी थी, ठीक थी। तो उसी तरह है। ओके, और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? कि आप लोगों को हवाईज़ादा की दुनिया में इनवाइट करती हूँ मैं 30 जनवरी को, आइए आप देखिए और हमारे साथ उड़े। थैंक यू सो मच। It was slow but it was nice. 3.5. Ayushmann Khan is very good. Ayushmann Khan is very good. Best is what real good. Nice one. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। रेटिंग देना चाहे तो कितनी रेटिंग? 5 बस 2 गुड। बहुत अच्छा है। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4। सुपर्ब, ऑसम मूवी, ग्रेट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 4 स्टार। ऑसम, नाइस, 4.5। मूवी वॉज गुड, आयुष्मान खुराना का काम कैसे लगा? ठीक था, अच्छा लगा। 3.5। वो कंसेप्ट अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी है तीनों की, मतलब एक्ट्रेस, एक्टर और मिथुन चक्रवर्ती। थोड़ी लेंदी फिल्म है और गाने और अच्छे हो सकते थे, लेकिन अच्छी फिल्म है ओवरऑल, 1 टाइम वॉच आराम से देख सकते हैं। हिस्ट्री है ये, अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। 3.5 स्टार्स। I would give 4. क्या आपको इसके बारे में पता था पहले? नहीं, I got to know about the history and everything from this film. And how's Ayushman in the book? Ayushman is very nice. His acting is very good. Mithun Chakravarti has done better. And what about the actress? Shraddha. She was very good. कितने स्टार देंगे? I'll give 4. Thank you. It had a nice concept, but somehow it didn't work properly. अच्छा, तो मतलब कि यहाँ क्या ये हिस्ट्री की पार्ट है, क्या आपको इसके बारे में पता था पहले से? नहीं, ये नहीं पता था, एक नई चीज़ पता चली है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आई थिंक इट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बस। अच्छा, और अगर आयुष्मान कितने कन्विंसिंग लगे एज साइंटिस्ट? नॉट क्वाइट कन्विंसिंग एक्चुअली, नॉट क्वाइट कन्विंसिंग। अच्छा, और बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस की बात करें? मिथुन चक्रवर्ती वाज गुड, पल्लवी शारदा द एक्ट्रेस वाज आल्सो डिसेंट इनफ, बट आई थिंक आयुष्मान कुड हैव डन बेटर। कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? 2 स्टार्स। आज जो पिक्चर हमने देखी हवाईज़ादा, इससे फिल्म अच्छी अभी तक नहीं बनी, और आज से जो एक्टर है इसका हीरो, ये सुपरस्टार बन गया, और उसके अलावा हीरो ने भी ज़बरदस्त काम किया है, म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, और इसमें कोई कमी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें कोई भी व्यक्ति कमी निकाल नहीं सकता, और मेरा निवेदन गवर्नमेंट से, सरकार से, पूरे हिंदुस्तान में इसको टैक्स फ्री आज से हो जाना चाहिए, और इसको मैं 5 में से 5 स्टार देता हूँ। जब से फिल्म शुरू हुई है, वो आदमी, कोई भी व्यक्ति फिल्म देखने वाला इस फिल्म से हट नहीं सकता, कंटिन्यूस उस फिल्म को देखते ही रहेगा, रुक नहीं सकता। और जिस ढंग से मिथुन दादा ने जो काम किया वो भी ज़बरदस्त किया, उनके लिए वो एक इस उम्र में सबसे अच्छा रोल मिला, और हीरो का रोल, हीरोइन का रोल, एक बच्चे का रोल, इसमें कोई भी कमी नहीं दिख रही। और देश के उत्थान के लिए
अंग्रेजों के खिलाफ किस ढंग से हमारे यहाँ क्रांति हुई। और कमाल तो इसमें ये किया कि गणपति को भी दिखा दिया और जो मुसलमानों के लोग विरोध में उनने भी सपोर्ट किया। अच्छा कमाल है, इमोशनल भी अच्छी है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति पैदा हो ये पिक्चर को देखने के बाद ना रो दे एक सेकंड को। कितना रोया? नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति के अगर आंसू आ सकते हैं, मैं जबकि कभी नहीं रोया, तो कहने का मतलब एक सेकंड में ये रुला देती। और इस ढंग से इसने डेवलप किया है जो हिंदुस्तान के लिए हर जगह, हर घर में, टीवी में, हर जगह पिक्चर आज जो भी देखेगा, और एक बार नहीं देखेगा, कई बार देखेगा, तब भी पिक्चर बार बार देखने का मन करे। उड़ते हुए आया। उड़ने का सपना नहीं है इसमें, रियल जिस ढंग से, नहीं बिल्कुल नहीं। और ये जो पिक्चर जैसी बनी है इससे अच्छी हो नहीं सकती। और जो अभी बेबी आई थी उसको पीछे छोड़ दिया इसने। खामोशियां नहीं देखी आपने? खामोशियां नहीं देखी। अभी इसके बाद नंबर दूसरी पिक्चर का है, कंटिन्यूस हम देखते हैं। तो अभी निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप बराबर इसको दिखाइए और हर घर के हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, सबको देखना चाहिए। और ऐसी पिक्चर देशभक्ति के लिए सबसे अच्छी है। और जिनके शेर सुना दूं, जिनके हृदय में जलते हो देशभक्ति के चिराग, वो नौजवान तो नौजवान है, उनके दिल की तरह धड़कते हो दिमाग, ये इस पिक्चर में दिखाया। थैंक यू। जस्ट आई कैन गो। फिल्म ठीक थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत स्लो मूवी थी। और ऐसा लग रहा था थोड़ी फास्ट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती और इन्जॉय कर पाते इस मूवी को। आयुष्मान ने एक्टिंग अच्छी की, गाने भी बहुत अच्छे गाए। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मूवी स्लो लगी, तो वो मतलब बोरिंग हो जाती है बीच में। लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी तरह पिकअप किया। लुक की बात की जाए तो हाँ, आयुष्मान ने काफ़ी अच्छा लुक दिया है, उसमें बहुत सूट भी हो रहा है उन पर। लेकिन वैसे पहले ट्रेलर्स में इतना इमेजिन नहीं किया था इतना अच्छा लगेगा, लेकिन पिक्चर्स में उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, वो हमेशा से अच्छी एक्टिंग करते हैं। और अच्छा लगा देखकर। अलग कंसेप्ट है तो क्या लगता है कितना हवाई ज़्यादा, हाँ कंसेप्ट बहुत अलग है। और एंड में बहुत मज़ा आता है जब वो प्लेन बना लेता है और उड़ने लग जाता है, तो वो बहुत अच्छा था और कुछ अलग देखने मिला बहुत टाइम से। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स माइल और माजा अच्छा लगा था, बस वही एक अच्छा गाना है और तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। 5 में से कितने स्टार? 5 में से मैं 2.5। वन टाइम वॉच है, दोबारा देखना चाहिए? वन टाइम वॉच। मूवी काफ़ी अच्छी थी बट थोड़ी सी स्लो थी, तो उसमें ही मार खा गई मूवी। आयुष्मान खुराना की मेरे को प्रीवियस मूवी में उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इसमें लाइक नॉर्मल थी। ओके सॉन्ग, इसमें एक सॉन्ग है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देता है, डार्क टिकट, वो ही अच्छा लगा सॉन्ग। बस 3 या वन टाइम वॉच।